ठीक है जी. And finally we have discussed about the solution of Maxwell equation in vacuum. So we have discussed that we have two equations. First one is this one for E vector, and second one is this one for B vector. And we have assumed the two solutions of E vector and B vector in terms of E0 vector, which is amplitude along the three different directions, and exponential function, which is carrying the wave in forward direction along any of the three directions. Okay? Now, next topic, subtopic in this article is prove that electromagnetic waves are transverse in nature in free space. How we can prove that electromagnetic wave are transverse? But what is meant by transverse nature of EM wave? सर परपेंडिकुलर होती है सर, मतलब जहाँ पे अलोंग द एक्सिस के सर. So suppose I draw these three different directions, Z, Y, and X. So if E vector is along this direction, for example, and wave is propagating along this direction, so unit wave number is along this direction, Z, and B vector is along this direction. If I say electromagnetic wave are transverse in nature, I have to prove that E vector is perpendicular to K vector. Okay? Then I have to prove that B vector is also perpendicular to K vector. In other words, so K dot E is equal to 0, Yes, or K dot B is equal to 0. Is it sufficient to prove that electromagnetic wave are transverse in nature? These two conditions. Sufficient है बच्चे, या कुछ और भी प्रूव करना पड़ेगा? Suppose I consider different axes like this. This is your K vector, this is E vector, and this is B vector. And if I say this is perpendicular, so these two conditions are satisfied by the second system as well. But here we see that E vector and B vector, they are not perpendicular. In first case, they are. So we have to add another condition that E vector should be perpendicular to B vector as well. Okay? So this can be proved by many ways. So we'll discuss about different conditions of proving transverse nature of electromagnetic wave. So बच्चे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि k वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. ये कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि ये ऐसा क्यों है 2 पाई बाय लैम्डा. सो ये डेफिनेशन है बच्चे. एक है हमारे पास वेवलेंथ एंड एक है वेव नंबर. दे बोथ आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस. सो दिस इज वेवलेंथ मींस व्हेन wave repeats itself. ठीक है, उतनी लेंथ को आप वेव लेंथ बोलोगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये साइन वेव है, सो यहां से यहां तक ये डिफरेंट है हर लोकेशन पे, और उसके बाद ये रिपीट करना शुरू कर देगी. सो दिस मच इज योर वेव लेंथ. वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव लेंथ. डिफरेंट डेफिनेशन है वजह इसकी. केमिस्ट्री फिजिक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस के साथ यूज करते हैं. नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 2 पाई मीटर्स. कि इतने डिस्टेंस के अंदर कितनी वेवलेंथ आ जाती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव नंबर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नंबर. ठीक है जी. सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो दोनों वेक्टर हमने लिख लिए. देन फर्स्ट विल प्रूव k डॉट E इज इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट चाहिए आपको. सो मैंने फर्स्ट वेक्टर उठा लिया E वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया डेल वेक्टर के साथ, डाइवर्जेंस ले लिया E वेक्टर का. ठीक है. सो बच्चे यहाँ इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन आयोटा, ये जो हमने वेव नंबर सॉल्यूशन में लिया हुआ है, और यूनिट वेक्टर आई कैप. सो यहाँ एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप यूज कर लिया. आप चाहो तो आई कैप, जे कैप, के कैप भी यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल दैट दिस आयोटा इज डिफरेंट फ्रॉम आई कैप. सो समटाइम्स देयर इज कंफ्यूजन. ठीक है जी. सिमिलरली ई वेक्टर इज डिनोटेड बाय आई कैप या एक्स कैप ई एक्स प्लस जे कैप या के कैप ई वाई एंड प्लस जेड कैप ई जेड. सो मैंने एक कंपोनेंट फॉर्म में ओपन कर लिया दोनों वेक्टर्स को.
अब Ex क्या है, क्योंकि हमारे पास तो ये पूरा था E वेक्टर इज इक्वल टू E0 वेक्टर e रेज़ टू आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t। सो इसको मैंने पूरे को खोल के कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। सो आई कैप के अलाउंग क्या कंपोनेंट है, E0 e रेज़ टू आयोटा kx into x plus ky into y plus kz into z माइनस ओमेगा t। ये जो k डॉट r है इसको मैंने ओपन कर लिया। k डॉट r को जब आप ओपन करोगे सो यू विल गेट kx into x plus ky into y plus kz into z, क्योंकि आपका r वेक्टर था x i कैप, y j कैप, z k कैप, या x कैप y कैप या z कैप भी लिख सकते हो आप, यूनिट वेक्टर नोटेशन। और k वेक्टर था हमारे पास kx into i कैप, ky into j कैप एंड kz into k कैप। सो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे यू विल हैव दीज कंपोनेंट्स, ठीक है, बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। सो ये कंपोनेंट फॉर्म में इसको ओपन किया हुआ माइनस ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है जी। देन सर अब मुझे, हाँ सर जी ये पूछिए। सर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों लिखा है सर? जब हम इसे पहले पढ़ते थे मतलब इन स्कूल, तो सर यहाँ पे ई नॉट और सर जो पावर में है ना सर वो सीधे मल्टीप्लाई हो रहा होता था, लेकिन यहाँ पे हमने उसको ई की पावर में लिया सर, ऐसा क्यों? मैं समझा नहीं मुझे आपका क्वेश्चन। सर मैं कह रहा हूँ कि सर ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है हम्म ये चीज। तो सर उस टाइम हम जब पढ़ते थे तो सर ये आता था ई नॉट, फिर आता था ब्रैकेट के सो आप के कह रहे हो पहले आता था E0 e रेज़ टू आयोटा kz माइनस ओमेगा टी, ऐसा बोल रहे हो ना? नो सर, ई नहीं हम्म, होता था, ये जो ब्रैकेट है ना सर, हाँ हाँ, ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा होता था मतलब। ब्रैकेट नहीं बजाय, आपको कुछ चीज तो साथ में लेके जानी पड़ेगी ना। वेव अगर फॉरवर्ड कर रही है या तो साइन फंक्शन यूज करोगे या कोसाइन फंक्शन यूज करोगे, पीरियोडिक फंक्शन तो यूज करोगे ना, तभी तो आपका एम्पलीट्यूड आगे फॉरवर्ड होगा, या एक्सपोनेंशियल यूज करोगे, ठीक है। सो हाँ सर। ऐसा हो सकता था कि साइन kz माइनस ओमेगा टी, है ना, या कॉस, अब एक्सपोनेंशियल। सो कोई ना कोई आपको फंक्शन तो होना चाहिए जो आपको पीरियोडिक फंक्शन जो आपको आगे की तरफ लेके जाए। अदरवाइज ओके ये तो फिक्स नंबर है एम्पलीट्यूड, इसको ये तो वेरी करेगा जब आप वेव को आगे लेके जाओगे, ठीक है। ओके सर। अब क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये साइन फंक्शन फॉलो करेगा या कोसाइन फंक्शन, इसलिए हमने उसको एक्सपोनेंशियल में लिख दिया, ठीक है ओके जी। सर। सो डेल डॉट ई, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन फ्री स्पेस, वी नो दैट दिस इज जीरो। सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है जी। और जब मैंने डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स कैप डॉट एक्स कैप, सो आपको करली बाय करली एक्स, ये जब सॉल्व करोगे बजाय इसके पास आएगा करली बाय करली एक्स ऑफ ई एक्स प्लस करली बाय करली वाई ऑफ ई वाई प्लस करली बाय करली जेड ऑफ ई जेड। डॉट प्रोडक्ट खोलोगे ना तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो ई एक्स का जब डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इस कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, एक्स का ये कंपोनेंट है, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स का कंपोनेंट क्या है, आयोटा इंटू के एक्स, ये बाहर आ जाएगा आयोटा इंटू के एक्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है वो एज इट इज रहेगा, तो साथ में ई एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लोगे, आयोटा के वाई बाहर आ जाएगा, ई वाई एज इट इज, देन आयोटा के जेड फॉर थर्ड टर्म एंड ई जेड एज इट इज, ठीक है जी। ये सिर्फ मैंने डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब ये जो वेक्टर आया इसमें से अगर मैं आयोटा कॉमन निकाल लूं इस तरह से, और ये जो मेरे पास रिजल्टेंट आता है जैसे ई एक्स इंटू के एक्स प्लस ई वाई इंटू के वाई प्लस ई जेड इंटू के जेड, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, कंपोनेंट फॉर्म में। सो एक्स कैप के एक्स प्लस वाई कैप के वाई प्लस जेड कैप के जेड डॉट प्रोडक्ट एक्स कैप ई एक्स प्लस वाई कैप ई वाई प्लस जेड कैप ई जेड। जब मैं डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा मुझे यही इक्वेशन मिलेगी, राइट हैंड साइड वाली, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लूंगा। सो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस वेक्टर, दिस इज के वेक्टर, एंड व्हाट इज दिस वेक्टर, हाँ जी बच्चे। नहीं सर, क्लियर होगा, मेरे को आयोटा का नहीं समझ में आ रहा था, वो आपने कॉमन ले मैंने लिया। इसीलिए कंफ्यूजन के लिए बच्चे इसको एक्स कैप लिख दिया ना, क्योंकि यहाँ पे आयोटा यूज हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे आई कैप लिख दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। सो ये है के वेक्टर, ये है ई वेक्टर, ठीक है। सो डेल डॉट ई विच इज इक्वल टू आयोटा के डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन से फ्री स्पेस के लिए, ठीक है।
सो आपने क्या प्रूव कर दिया कि k डॉट e इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन प्रूव हो गई। सो आपको k डॉट e 0 प्रूव करना था, ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करने के लिए उसकी पहली कंडीशन थी k डॉट e इज इक्वल टू 0। सिमिलरली b वेक्टर भी तो सेम ही है, b वेक्टर सिर्फ e की जगह b लिख दोगे तो बाकी सब कुछ तो सेम ही है यहाँ सॉल्यूशन में। और आपको मालूम है कि डेल डॉट b, यहाँ डेल डॉट e 0 है फ्री स्पेस में, तो डेल डॉट b तो ऑलरेडी 0 है किसी भी फील्ड के लिए। तो डेल डॉट बी 0 है। जब सेम आप सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड के लिए करोगे, यू विल फाइंड आयोटा k डॉट b आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली आप एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हो, सिमिलरली फॉर b वेक्टर डेल डॉट b इज इक्वल टू आयोटा k डॉट b, यही है, और ये है इक्वल टू 0 मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, सो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। ठीक, k डॉट b is equal to 0. So we have proved that E vector and B vector are perpendicular to direction of propagation. If wave is moving along this direction, I have proved that E vector and B vector, they are perpendicular to this direction. But अभी मैंने ये नहीं प्रूव किया कि E vector और B vector they are mutually perpendicular. ठीक है, so सर हाँ जी बच्चा, सर आपने थर्ड लाइन में सर EXIKX प्लस EYIKY को सर मतलब इसके 0 के इक्वल कैसे पुट कर दिया सर? यहाँ यस सर। ना करो बच्चा, इस स्टेप में ना करो। आप फाइनली यहाँ भी तो वही कर रहे हो ना, डेल डॉट E इज इक्वल टू 0 मैक्सवेल की पहली इक्वेशन से, तो वो वही वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा था। मत लिखो इसे अभी, आप सिंपली लिखो डेल डॉट E इज इक्वल टू आयोटा k डॉट E इज इक्वल टू 0 फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। सर फिर ये मतलब वैक्यूम के केस में सर वैलिड है ना? हाँ, तो अगर आप कंडक्टिंग मीडिया लोगे तो वो चेंज करेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो दो कंडीशंस प्रूव हो गई मुझे, k डॉट E इज इक्वल टू 0 एंड k डॉट B इज इक्वल टू 0। अब मुझे थर्ड प्रूव करना है कि E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब मैं हेल्प लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये प्रूव कर दूं कि k और E का क्रॉस प्रोडक्ट k क्रॉस E ये B की डायरेक्शन में है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ B, तो प्रूव हो जाएगा कि E वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इफ आई प्रूव दैट k एंड E इनका क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के लॉन्ग है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, k क्रॉस E is pointing in the direction of B vector, so it means B vector is perpendicular to k as well as E। ठीक है ना? यस सर। सो ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं कि k वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b। सो हमारे पास जो फाइनली रिजल्टेंट आ जाएगा E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b, ये प्रूव कर दूं, या मैं ये प्रूव कर दूं कि k क्रॉस b इज इन द डायरेक्शन ऑफ E, दोनों में से कोई भी कंडीशन। इसीलिए मैंने कहा था बिगिनिंग में, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ प्रूविंग दिस। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन या कोई और मेथड आपके पास जो E वेक्टर एंड B वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करे, आप यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इक्वेशन, E वेक्टर एंड B वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। सो डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस करली B बाय करली T। ये हमारे पास मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन है फ्री स्पेस में। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे E वेक्टर की। सो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग, क्योंकि दोनों में अलग अलग वेक्टर यूज कर रहे हैं। इसमें यहाँ E वेक्टर है, यहाँ B वेक्टर है। सो सिंपली डेल को मैंने ओपन कर लिया कंपोनेंट फॉर्म में, एक्स कैप करली बाय करली एक्स प्लस वाई कैप करली बाय करली वाई प्लस जेड कैप करली बाय करली जेड, क्रॉस प्रोडक्ट एज इट इज। ई वेक्टर को लिख लिया एक्स कैप ई एक्स प्लस वाई कैप ई वाई प्लस जेड कैप ई जेड। ठीक है जी, वही कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड आपके पास माइनस करली बाय करली टी, बी वेक्टर को लिख लिया मैंने एक्स कैप बी एक्स प्लस वाई कैप बी वाई प्लस जेड कैप बी जेड, ये कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया, ये क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना मुझे आपको सॉल्व करना, सो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई, ये डेल वेक्टर जो है कंपोनेंट फॉर्म में, और यहाँ पे ई एक्स ई वाई ई जेड। ई एक्स ई वाई ई जेड हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ई जीरो एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म है वो है। ठीक है जी, व्हेन यू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट यू विल गेट एक्स कैप आयोटा के वाई इंटू, यहाँ से है ना एक्स कैप आयोटा, ये मैं एक टर्म सॉल्व करके दिखाता हूँ मुझे आपको। सो इट इज करली ई जेड बाय करली वाई माइनस करली ई वाई बाय करली जेड। तो ये एक टर्म है। सिमिलरली वाई कैप और
z कैप वाली टर्म्स होंगी। सो जब आप इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट x कैप आयोटा ky इंटू ez माइनस आयोटा kz इंटू ey। जब आप ये डेरिवेटिव सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी। सो ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये जो है इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। सिमिलरली फॉर y कैप, आयोटा कहाँ से आया? आयोटा बचे जब ये डेरिवेटिव लोगे ना एक्सपोनेंशियल टर्म का, आपने यहाँ जब इसका ई वाई का डेरिवेटिव लोगे, ई वाई क्या है, ई जीरो ई रेस टू आयोटा के डॉट आर है ना, मैंने उसको सॉल्व करके लिखा माइनस ओमेगा टी। जब डेरिवेटिव लोगे तो ये आयोटा तो ब्रैकेट में है ही, ब्रैकेट के बाहर है ही, तो ये बाहर आएगा आपका, जैसे यहाँ इस केस में आया था ना। ठीक है जी। ओके सर। सो ये मैंने सॉल्व कर लिया, क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल है मुझे, आपको सिर्फ ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ओपन करना है और राइट हैंड साइड में है करली बाय करली टी, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना है। अब बी एक्स क्या है, वही कंपोनेंट फॉर्म में बी जीरो ई रेस टू आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, के डॉट आर को आप कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट ओपन करके। सिमिलरली बी वाई भी यही है और बी जेड भी यही है। ठीक है, जब डेरिवेटिव लोगे इनमें से किसी का भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा बाहर, माइनस ओमेगा, आयोटा तो बाहर है ही, सो माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, माइनस आयोटा ओमेगा, यही बाहर लिखा है मैंने, माइनस तो पहले ही था यहाँ पे ब्रैकेट में, माइनस आयोटा ओमेगा एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एज इट इज ही रहेगा, करली बाय करली टी ऑफ बी एक्स, अगर ये लिखोगे यू विल गेट माइनस आयोटा ओमेगा बी एक्स। ठीक है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, एक्स कैप बी एक्स, वाई के विद रिस्पेक्ट टू लोगे तो उसमें भी माइनस आयोटा ओमेगा कॉमन आएगा, बाहर आएगा, प्लस वाई कैप बी वाई प्लस जेड कैप बी जेड। सो ये राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली हमने। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव लेने के बाद, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा बाहर निकाल दिया, एक्स कैप के एक्स प्लस वाई कैप के वाई प्लस जेड कैप के जेड, ये एक वेक्टर हो गया, क्रॉस एक्स कैप ई जेड प्लस वाई कैप ई वाई प्लस जेड कैप ई जेड, ये दूसरा वेक्टर हो गया। सो दिस इज के वेक्टर एंड दिस इज ई वेक्टर, और यहां से माइनस और माइनस प्लस हो गया, आयोटा ओमेगा बाहर है, और ये है हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, सो जब इसको सिंप्लीफाई किया और आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, सो आपके पास सिंपली क्या बचा, के क्रॉस ई, के क्रॉस ई, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स बी वेक्टर। यहां से प्रूव हो रहा है मुझे कि जो के और ई ये जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट इट इज अलोंग बी वेक्टर, इट मींस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ के एंड ई वेक्टर। तो यहां से आपकी तीसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूव करने के लिए। सर ठीक है, हाँ जी, सर इसकी डेरिवेशन आएगी पेपर में? हाँ जी आ सकती है, इसकी डेरिवेशन आ सकती है। ओके सर। सो ये आप एक बार सॉल्व करके देखना, मैं बच्चे जितनी मर्जी बार समझा लूंगा, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी कोई ना कोई मिस्टेक होने के चांस है। ठीक है, अब आप स्टार्ट किया था आपने मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, अगर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन से आप स्टार्ट करो, फोर्थ इक्वेशन क्या थी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। इस इक्वेशन से स्टार्ट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी, सिमिलरली फॉर फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन वी हैव के क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ई वेक्टर। ठीक है, वो सिमिलर स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपके पास मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, के क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ई कैप। सो पहली इक्वेशन से यहां तो आपको पता लग रहा है कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू के ई एंड के, और यहां से आपको पता लग रहा है ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एंड के। ठीक है, और आप ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हो कि के डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, के डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। Hence, proved from these equations that electromagnetic wave are transverse in nature, at least in free space. ठीक है, they are mutually perpendicular. Clear है बच्चे, इसमें कोई डाउट? सर ये वाला इक्वेशन लिखी है ना सर, जिसमें आयोटा हमने कॉमन निकाला है, सर ये वाली एक बार समझाना सर, नहीं समझ आई। ये वाली हाँ जी सर। बच्चे जब आप के क्रॉस ई करोगे ना, सर मतलब उस स्टेप से सर इस स्टेप में हमने करा क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप में आके? इस स्टेप से यहाँ पे क्या हाँ किया है, जी सर, हाँ जी सर।
बजाय जब ये जो आपके पास वेक्टर है ना, इसको इसकी सिर्फ हमने फॉर्म चेंज की है। ये कॉम्प्लेक्स था, इसमें चीजें मिक्स हो रही थी, इसको सिर्फ वेक्टर को सेपरेट करके लिखा है हमने। सो अगर जस्ट अ मिनट, सो अगर इसको मैं एक्स कैप, जे कैप, वाई कैप और के कैप, तो ये था के एक्स, के वाई, के जेड, और ये है ई एक्स, ई वाई, ई जेड। सो इसी की कंपोनेंट फॉर्म मैंने खोली है, आयोटा तो बाहर है ही, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो जब इसको मैं ओपन करूंगा तो मुझे वापस यही पूरी की पूरी इक्वेशन मिलेगी। सो सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज की है। सो ट्राई करके देखते हैं। सो एक्स कैप का पहले क्या आएगा, के वाई इंटू ई जेड, विच इज के वाई इंटू ई जेड, माइनस के जेड इंटू ई वाई, माइनस के जेड इंटू वी। आयोटा बाहर मैं मल्टीप्लाई कर ही रहा हूँ, सो आप इन दोनों में से कॉमन भी निकाल सकते हो। सिमिलरली प्लस वाई कैप वाली जो टर्म है यहाँ से अब जब आप निकालोगे वो भी यही आएंगी, और जेड कैप वाली। सो हमने क्या किया है, ये जो हमें वेक्टर डिफरेंसेस वाला दिख रहा था, है ना, इनको हमने सिंप्लीफाई करके एक सिंपल वेक्टर में लिख दिया, विच इज के एंड ई वेक्टर। और कुछ नहीं किया, फॉर्म चेंज किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया उसको। ठीक है। So then EM wave in vacuum are transverse in nature. That is, electric and magnetic field are in phase and are mutually perpendicular as well as perpendicular to direction of propagation. So जब आपको पूछा जाए कि transverse in nature in of electromagnetic wave, you have to prove all this. ठीक है जी। नेक्स्ट मुझे नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले सब आर्टिकल इसी में, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिस्टेंस? What is a resistance? Sir, that opposes obstruction to a flow of something. Obstruction to flow of current, for example, है ना? yes sir. Yes sir. सर What is- रेजिस्टेंस सिर्फ आपने रेजिस्टेंस पूछा ना, वो सिर्फ करंट के लिए थोड़ा ना होता है। बच्चे कुछ भी मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की है कि सर्किट में अगर, अदरवाइज रेजिस्टेंस इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू एनीथिंग व्हिच इज फ्लोइंग। yes sir. Yes, sir. एंड व्हाट इज इंपीडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? इंपीडेंस क्या होता है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस? सर इम्पीडेंस सर उसमें LCR वाला सर्किट है ना, उसका भी रेजिस्टेंस आता है, कैपेसिटर का भी आता है। हाँ, सो कैपेसिटर का भी, इंडक्टर, सो कॉम्बिनेशन ऑफ एलसी, कैपेसिटर, इंडक्टर, वो आपको LCR है ना, एलसीआर सर्किट में, ये आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कि रेजिस्टेंस प्लस जब आप एलसी यूज करते हो तो उसकी वजह से एक रिएक्टेंस भी आता है, और रिएक्टेंस sir. प्लस रेजिस्टेंस इज इंपीडेंस। ठीक है जी। सो अब हमें इसी आर्टिकल के अंडर फाइंड करना है इंपीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस का इंपीडेंस से क्या मतलब है मुझे? फ्री स्पेस हैज कैपेसिटेंस, सो यहां फ्री स्पेस है ना, इसके पास कैपेसिटेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। कैपेसिटेंस इज रिलेटेड टू परमिटिविटी एंड इंडक्टेंस इज रिलेटेड टू परमिएबिलिटी। ठीक है जी। दीज आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। सो ये इंट्रिंसिक, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस व्हेन एक्साइटेड बाय, अब ये जो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ फ्री स्पेस है, व्हेन एक्साइटेड बाय टाइम वेरिंग सोर्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो टाइम के साथ चेंज कर रही है, टाइम वेरिंग सोर्स, they behave, combination of capacitance and inductance, they behave that if they were resistors. So combination इनका behave करेगा कि ये resistor है, impedance की term में बात करूं। The only difference between resistors, between that those that resistors, these resistors do not dissipate power as real resistor does. So they do not dissipate power. तो अगर आपके पास सिंपल एलसी सर्किट है, तो आपने देखा था कि एसएचएम जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करता, उसका इलेक्ट्रिकल वर्जन था एलसी सर्किट। सो एलसी सर्किट में आपका कैपेसिटेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, और अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है, इट मींस देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एम्पलीट्यूड और पावर। बट जैसे ही आप इसमें रेजिस्टेंस लगाते हो, एलसीआर कर देते हो, तो वो बन जाता है डैम्प्ड हो जाता है ना, बिकॉज actual resistance, it dissipate energy in the form of heat, Joule heating effect, I square R into T,
है ना, ये आपने +2 में पढ़ा होगा मुझे, ये रेजिस्टेंस जो है हीट लॉस करती है जब उसमें से करंट पास करता है, ठीक है। सो अब इसी के बेस पे हमने मुझे फाइंड करना है कि फ्री स्पेस कितनी इंपीडेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ठीक है जी। सो ये देखते हैं अभी। सो पहले तो मुझे K क्रॉस E जो हमने प्रूव किया था, K क्रॉस E ये हमने अभी निकाला था ओमेगा B, है ना, दोनों का मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया। सो ये एक और चीज भी है कि आपने प्रूव करना है कि E और बाय B, E0 बाय B0 इज C, ये भी आ सकता है शॉर्ट आंसर में। सो स्टार्ट फ्रॉम K क्रॉस E इज इक्वल टू ओमेगा B, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। सो ये मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, K E वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, उसकी सॉल्यूशन फॉर्म में, E0 एक्सपोनेंशियल आयोटा K डॉट R माइनस ओमेगा T इज इक्वल टू ओमेगा B0 एक्सपोनेंशियल आयोटा K डॉट R माइनस ओमेगा T। सो मैंने दोनों वेक्टर्स में लिख लिया। अब यहाँ मैं तो प्रूव कर चुका हूं कि K वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू E वेक्टर, सो K क्रॉस E ये हो जाएगा K वेक्टर E वेक्टर साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा B। अब दोनों परपेंडिकुलर तो थीटा कितना होगा, theta is the angle between K vector and E 90 vector. सर। So if theta is 90, this term is 1. So मैंने यहाँ पे वो एंगल लिखा नहीं, ठीक है, sin theta is 1. So ये एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल मैंने कट कर दिया, ठीक है। So E नॉट क्या आ गया, ओमेगा बाय K B0। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, so 2 pi into nu. So ओमेगा is 2 pi into nu, या इसको 2 pi into f, जो भी नोटेशन आप यूज कर रहे हो। और K की वैल्यू क्या है, 2 pi by lambda। सो मैंने 2 pi से 2 pi कैंसिल कर दिया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनटू f, ये क्या होगा, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी क्या होगी, So velocity. it is velocity, and we have proved that EM wave in free space it moves with the velocity of light, so it is equal to c। so यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। so E0 is equal to c times B0, ठीक है जी। दिस इज वन ऑफ द रिलेशन, आपको प्रूव करने को आ सकता है कि प्रूव दैट E0 इज इक्वल टू C टाइम्स B0, या रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक वेक्टर इज C। अच्छा, यहाँ से कुछ आपको आइडिया लग रहा है बच्चा कि E0 बाय B0 इज इक्वल टू C, यहाँ से आपको कोई सिग्निफिकेंस लगता है इस इक्वेशन का? ट्रांसफर्स हो गए। अब यहाँ देखो बच्चे, C इज ए वेरी लार्ज नंबर, 3 into 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है बराबर रेशियो ऑफ E0, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर। सो यहां से आपको पता लग रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू मैग्नेटिक वेक्टर। इसीलिए जब हम लाइट की इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन स्टडी करते हैं, वी ओनली कंसीडर द E वेक्टर because our eye is sensitive to only electric vector. Magnetic vector is very feeble as compared to electric vector, ठीक है। अब B वेक्टर को आपने मैग्नेटाइजेशन की टर्म में इसको पढ़ा होगा, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H नॉट, H इज मैग्नेटाइजेशन, B इज मैग्नेटिक फील्ड। सो E0 बाय H0 की रेशियो क्या हो जाएगी, E0 बाय B नॉट डिवाइड बाय म्यू, H0 की वैल्यू है B नॉट डिवाइड बाय म्यू, सो मैंने वैल्यू पुट कर दी। E नॉट बाय B नॉट मैंने अभी निकाला है कि C है ना। सो ये सिंप्लीफाई होके आ गया C इंटू म्यू नॉट ऊपर चला गया, यहां आ गया। सो रेशियो ऑफ E0 एंड H0 इज C टाइम्स म्यू नॉट। C की वैल्यू क्या है, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, ठीक है जी। सो सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 4 पाई pi into 10 to the power -7. ठीक है, सिंपल हम यूनिट। और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 into 10 की पावर -12. 12. जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, यू विल सिंपली गेट 377 ohms, या टू बी प्रिसाइज इतना, ठीक है। सो दिस इज 377 ohms। जब आप इसके यूनिट एडजस्ट करोगे यहाँ पे, यू विल गेट यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस 377 ohms। सो वेव इंपीडेंस इन फ्री स्पेस which is denoted by Z0, ठीक है जी, it is equal to square root of mu naught by epsilon naught, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि Z0 is equal to E0 by H0।
इट कम्स आउट टू बी 377 ohms, फिक्स्ड है, इतनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है फ्री स्पेस टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है जी। अब यही अगर डाइलेक्ट्रिक होता तो यहाँ ये जो हमने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा है ये रिलेटिव हो जाती टर्म्स, म्यू बाय एप्सिलॉन हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जिसको हमने 1 ले लिया तकरीबन, और यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सो इट इज जेड नॉट बाय एप्सिलॉन आर, क्योंकि म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट तो जेड नॉट है आपका, सो जेड नॉट बाय एप्सिलॉन, सो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट बाय एप्सिलॉन आर। सो ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है कि हाउ वेव इम्पीडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम वेरीज विद फ्री स्पेस, ठीक है, और सिंपली 377 ohms divided by epsilon r. So this is the wave impedance of free space. सर हाँ जी विजय। तो एक मिनट, ये कैसे मालूम पड़ा कि जो 377 ओम है वो फ्री स्पेस रेजिस्टेंस ही दे रहा है ईएम वेव को? मतलब बच्चे ये formula- जब ये जब आप इसकी यूनिट, इसलिए मैंने आपको कहा ना ये म्यू नॉट बाय 4 पाई की यूनिट और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, तो वो समझ में आ गया कि वो फॉर्म हम्म। वो हमने इसमें डाला तो वैल्यूज 377 आ गए, बट सर ये अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सर ये कैसे डिनोट कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस इंपेडेंस की वैल्यू है ये? बच्चे जब आप इसके एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि ये उसके यूनिट्स ओम्स के हैं, रेजिस्टेंस के हैं। हाँ सर, यूनिट तो सर हाँ वो और dimension- मैंने बिगिनिंग में क्या बोला था कि फ्री स्पेस जो मैंने फ्लो चार्ट टाइप बनाया था, फ्री स्पेस हैज कैपेसिटेंस एज वेल एज इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इज रिलेटेड टू परमिटिविटी एंड इंडक्टेंस इज रिलेटेड टू परमिएबिलिटी। तो ये क्या है, म्यू नॉट क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, ओके ठीक है। ये one is the property related with capacitance, another one is property related with the inductance. So mu naught inductance के लिए आ रहा है आपका, epsilon naught capacitance के लिए आ रहा है, इन दोनों के combined effect की वजह से आपके पास impedance आ रहा है, ओके सर। ठीक है। तो मतलब ये आपका फ्री स्पेस का आर्टिकल कंप्लीट हो गया। सर एक सेकंड सर, नोट करना है। हाँ मुझे नोट कर लो। एंड वन मोर थिंग बचे, ये जो फ्री स्पेस का आर्टिकल है, अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय एन.के. वर्मा कर रहे हो, दैट हैज 1 डायमेंशन सॉल्यूशन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये, और ये जो मैंने कराया 3 डायमेंशन में है, ठीक है। आप प्रेफर करो कि जो मैंने करवाया आप वही करो, बिकॉज ओनली देन यू कैन प्रूव दैट ईएम वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अदरवाइज क्या होगा, 1 डायमेंशन में आप अज्यूम कर रहे हो कि वो ट्रांसवर्स है, सो अज्यूम कर कोई चीज अजम्पशन लेके चल रहे हो और उसी को प्रूव कर रहे हो, वो कोई लॉजिक नहीं होगा। सो सर ये सब डेरिवेशंस नहीं है उस बुक में? डेरिवेशंस हैं बचे, बट ये वाली नहीं है, 3 डायमेंशन नहीं है, ओके सर। सो ये पूछी जाएंगे ना सर 3 डायमेंशन वाली? ऑब्वियसली। ये बड़े आर्टिकल हैं मुझे, फ्री स्पेस और इलेक्ट्रो एंड कंडक्टिंग मीडिया वाले, इनमें से बड़े क्वेश्चंस ही आते हैं। ओके सर। ठीक है जी, आगे चले बच्चे। सर एक सेकंड सर। एक सेकंड सर। और बच्चे ये जो मैंने प्रूव किया ना, k डॉट e इज इक्वल टू 0, k डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड k क्रॉस e या k क्रॉस b, ये आप खुद सॉल्व करके देखना मुझे, सिंपल है, इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये जैसे आपको अभी स्टेप समझ नहीं आ रहे ना, चाहे एग्जाम में आप डायरेक्ट स्टेप लिख दो, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेप आया कैसे। सर डन। एक रिलेशन और है बच्चे, ओमेगा, कई बुक्स में उस तरह यूज किया हुआ है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया ना, इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ है। जैसे ओमेगा इज इक्वल टू के सी, ये रिलेशन लिखा हुआ है। अब ये रिलेशन आया कैसे, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई इंटू एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, यस सर। फ्रीक्वेंसी को किस फॉर्म में लिखोगे बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखोगे फ्रीक्वेंसी को, c बाय लैम्डा, यस सर। सी बाय लैम्डा। सो इसको मैं लैम्डा को इस तरफ लिख देता हूँ, सो हाँ 2 पाई सर। बाय लैम्डा इज के सी, सो इस तरह भी यूज किया हुआ है कई बुक्स में। सर हमने म्यू आर इक्वल्स टू 1 कैसे लिया था सर, वो नीचे जो हमने लिया था? रिलेटिव परमिएबिलिटी है, अप्रोक्सीमेटली उसको 1 लेके चल रहे हैं बच्चे।
रिलेटिव परमेबिलिटी approximately okay अप्रोक्सीमेटली। अगर आप नहीं लेना चाहते तो वो भी लिख सकते हो साथ में। okay सो ये एक कंप्लीट पिक्चर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जो मैग्नेटिक वेक्टर, ये जो मैग्नेटिक वेक्टर है ये इसके इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन में, और वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, और कंप्लीट वेवलेंथ क्या है, जहां से वेव रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो या अगर हम ये पॉइंट लें तो कहां तक वेवलेंथ काउंट करोगे, यहां से एक ये नीचे गई, ठीक है, फिर ये अगले ऊपर आनी शुरू अगले हुई, तक, और ये अगले पॉइंट। सो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेव नंबर क्या है, 2 पाई मीटर्स में कितनी वेवलेंथ्स आ चुकी हैं, उसको आप वेव नंबर बोलोगे। उस वेव का ये नंबर है। सो समटाइम्स वेवलेंथ इज इजी टू यूज, और समटाइम्स वेव नंबर इज इजी टू यूज। Next we have next article, applications of electromagnetic wave in conducting media. So Maxwell's equation in conducting media डिस्कस करते हैं बच्चे पहले। कंडक्टिंग मीडिया में क्या होगा बच्चे, अभी जो आपने अपसाइलन जो है वो अपसाइलन नॉट जो है वो अपसाइलन हो जाएगा, म्यू नॉट जो है वो म्यू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, रो इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू 0। फ्री स्पेस में आपने क्या किया था, फ्री स्पेस में तो सिंपली रो 0 एंड जे 0 ये आपने लिख दिया था फ्री स्पेस में। इस केस में रो इज 0, जे इज नॉट इक्वल टू 0। इज इट ट्रू फॉर कंडक्टिंग मीडिया? ये कंडीशन एप्लीकेबल है मुझे कंडक्टिंग मीडिया के केस में? यस सर। कैसे सर कैसे? हाँ जी बच्चे, सर चार्ज डेंसिटी 0 क्यों हुई? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, whether this condition is applicable to conducting media or not. सर अगर चार्ज ही नहीं रहेगा तो मेरे ख्याल से मीडिया हो गई। If it is a conducting, then obviously charge should be there. यस सर। But then why? charge density is 0. Why? तो क्योंकि कंडक्टिंग में वो उसके सरफेस पे। Yes, this is the precise answer, that the charge do not lie inside the conducting media, it lies on the surface of the conducting media. ये आपने पढ़ा होगा, इसको हम प्रूव भी करेंगे मुझे कि रो 0 क्यों है। चार्ज जो है कंडक्टिंग मीडिया के कंडक्टिंग सरफेस के कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस के ऊपर लाई करता है, ना कि मीडियम के अंदर, मटेरियल के अंदर। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर, और इसमें चार्ज है कुछ प्लस क्यू, तो वो जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे होगा, ठीक है, इसके अंदर चार्ज 0 ही होगा। देयर इज नो चार्ज इनसाइड ए गुड कंडक्टर। ठीक है जी सर। हाँ जी। अरे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन कैसे हो गया, और ये म्यू नॉट और म्यू कैसे? Epsilon naught and mu naught, these are quantity for defined for free space, ठीक है। बट अगर आप इसको कंडक्टिंग मीडिया में इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो क्वांटिटीज हैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ये चेंज हो जाती हैं, ये चेंज हो जाएंगी एप्सिलॉन और म्यू में। और एप्सिलॉन और म्यू हमने डिफाइन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी। सो ये डेफिनेशंस है मुझे, कि अगर आप फ्री स्पेस से कंडक्टिंग मीडिया किसी और मीडियम में शिफ्ट करते हो, तो आपका परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ये कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। सो ये डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 हो गया, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन, क्योंकि आपने रो 0 प्रूव कर दिया, रो 0 अज्यूम किया। डेल डॉट बी मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन एज इट इज, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी एज इट इज। एंड फोर्थ इक्वेशन डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ म्यू है, म्यू नॉट नहीं है, सो म्यू टाइम्स J plus epsilon, not epsilon naught, epsilon curly E by curly T. J is non-zero here. ठीक है, क्लियर अब? सो ये आपकी 4 इक्वेशंस हो गई। सर एक बार पिछली साइड दिखाना सर। ओके सर। आप जब बिगिन करना हो ना, तो पहले मैक्सवेल की 4 इक्वेशन इस तरह लिखोगे, डेल डॉट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, सेकंड इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, देन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, देन डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू टाइम्स
J plus epsilon times curly E by curly T. So these are your Maxwell's equation in conducting media. ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे कि in conducting media charge lies on the surface of the conductor, so rho should be 0 inside the conductor, but J is not equal to 0. So in view of this condition, your Maxwell equations are rewritten or can take different form. So आप उसके बाद ये लिख सकते हो. ठीक है जी. Then we have Ohm's law. ये J is equal to sigma E. उसके लिए current J is proportional to E, and it is given by J is equal to sigma E. Sigma is conductivity. This is Ohm's law. ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा. हाँ. So then is charge in a conductor. अब प्रूव करना है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 कैसे आ गया. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी हमारे पास? डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस करली रो बाय करली टी. ठीक है, और ये हमने फ्री स्पेस के लिए नहीं, ये हमने जनरल किसी भी स्पेस के लिए ये एप्लीकेबल है. सो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस करली रो बाय करली टी. सो करली रो बाय करली टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे. जे की वैल्यू हमने क्या की थी अभी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. ठीक है जी, सिग्मा इज अ कांस्टेंट नंबर, बाहर आ जाएगा. सो डेल डॉट ई. अब डेल डॉट ई क्या है? अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं कि रो इज 0, ये कंडीशन अभी मैं ना लगाऊं, सो मेरा डेल डॉट ई क्या था? मैक्सवेल की पहली इक्वेशन इज रो बाय एप्सिलॉन. तो वही मैंने वैल्यू यहां पुट कर दी, रो बाय एप्सिलॉन. सो माइनस सिग्मा रो बाय एप्सिलॉन. डेल डॉट जे की वैल्यू आ गई माइनस डेल डॉट जे की. सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा रो बाय एप्सिलॉन, और इन अदर वर्ड्स 1 बाय रो करली रो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन करली टी. सो ये हमारे पास फॉर्म आ गई. ठीक है जी. अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. हमें प्रूव करना है कि ये 0 है या नहीं है. ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स. अब रो नॉट लोअर लिमिट क्या है? टाइम 0 पे चार्ज डेंसिटी, जैसे ही आपने t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज डेंसिटी रो नॉट है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो है रो. ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स और डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, विल गेट रो इज इक्वल टू रो नॉट e रेज टू पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन t. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. ठीक है जी. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना सर, एक सेकंड के लिए बस. ओके सर, सर कर दो जी. सो इस इक्वेशन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? रो इज इक्वल टू रो नॉट e रेज टू पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन t. सर क्या मतलब information? डेंसिटी सर टाइम पे डिपेंड कर रही है सर. सो एक तो एक्सपोनेंशियल में माइनस है, सो ये डिके कर रहा है. सो चार्ज डेंसिटी आपकी डिके करेगी. कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना फास्टर डिके करेगी. ठीक है, सो हम एक टाइम डिफाइन करते हैं, द टाइम ड्यूरिंग विच रो नॉट reduces to rho naught by e is called characteristic time. ठीक है जी, characteristic time tau. So if t is equal to tau, rho is equal to rho naught by e. अगर ये हम कंडीशन ऊपर पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? रो नॉट बाय ई इज इक्वल टू रो नॉट e रेज टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन टाउ. सो रो नॉट से रो नॉट कैंसल, e रेज टू माइनस 1, ये 1 बाय e को e रेज टू माइनस 1 लिख लिया. सो इट इज e रेज टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन टाउ. ठीक है, पावर कंपेयर कर लो क्योंकि दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल है. सो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा. सो t becomes tau becomes epsilon by sigma. सो कैरेक्टरिस्टिक टाइम ये आपको बता रहा है कितना फास्टर आपकी जो चार्ज डेंसिटी रो नॉट t इज इक्वल टू 0 पे, वो कितना फास्टर डिके कर रही है कंडक्टर के अंदर.
सो अगर ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, तो EM वेव अगर यहाँ इस तरह ट्रेवल कर रही है, इसके ऊपर हिट कर रही है, सो t इज इक्वल टू 0 वो टाइम है जब ये सिर्फ सरफेस पे थी, सो t इज इक्वल टू 0 पे डेंसिटी इज रो नॉट। अब उसके बाद जो है विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो है डिक्रीज करेगी इस तरह से। तो कितने डिस्टेंस के अंदर ये जो रो नॉट है ये रो नॉट बाय ई हो जाएगी, इसको बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक टाइम। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटी। इफ योर कंडक्टर इज परफेक्ट तो टाउ कितना होना चाहिए मुझे? इनफिनिटी हो जाएगा। नहीं, परफेक्ट कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी कितनी होगी? सिग्मा। कंडक्टर परफेक्ट है तो जितना जो भी कुछ उसमें डालो वो कंडक्ट कर जाएगा, सो कंडक्टिविटी विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तो कैरेक्टरिस्टिक टाइम कितना हो जाएगा? 0। दिस प्रूव्स दैट विद इन नो टाइम रो नॉट बिकम्स रो नॉट बाय ई। तो इसका मतलब है वो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर जा ही नहीं पा रहा चार्ज डेंसिटी, या चार्ज उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा, वो इमीडिएटली जैसे कंडक्टर पे फॉल करती है एम वेव, चार्ज डेंसिटी जो है वो खत्म हो जाती है, 0 की तरफ आ जाती है, या रो नॉट बाय ई हो जाती है ऑन द सरफेस। और ये डिपेंड करता है आपका जो कंडक्टर है वो कितना गुड है या कितना बैड है। अगर बैड कंडक्टर है तो पेनिट्रेट करेगी, अगर गुड कंडक्टर है तो सरफेस पे रहेगी। ठीक है जी। सो इसके बाद वाला नेक्स्ट क्लास में करते हैं कल। सर